was there in the accounts department, behind that big sort of accounts wall. Thank you all for being a pillar and companion in the 10-year journey. I would like to end my speech with a verse that I remember reciting at the first year anniversary of Whistling Woods. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you very much. It's an honor and a privilege to be able to be a part of this gift to Subhashji. He loves music and he loves playing the piano and plays it so beautifully. So this is one for you, Subhashji, from all of us. I'm surprised, shocked, I have no word to say. Surprise after surprise. What is this happening to me? And do you want me to say a few words? Yes, please. Do you want me to say 2 words or? It's very embarrassing. It's very embarrassing that we mix up Subhash Ghai's birthday with the Alumni Day. Subhash Ghai is still a student on his own. So I would like to request Whistling Woods management, they should celebrate my birthday in the morning and Alumni Day in the evening. You know, because I have come here to share you, to meet you, all of you, on this day. Being alumni is such a beautiful nostalgic name. Alumni means, imagine all of you. आप अपने उस स्कूल में वापस जाते हैं जहाँ आप पढ़े, जहाँ आपके टीचर्स हैं, जहाँ आपके कुछ दोस्त हैं, आपके स्टाफ हैं. I think एक अपना पुराना घर गांव का और एक अपना स्कूल जिसमें आपने पढ़ा हो, ये 2 चीजें कभी नहीं भूल सकते. And I love the word alumni itself. Today is the 10th year of Whistling Woods annual alumni meet. These are students and you are also once upon a time student. What is alumni? Is a person who has passed out or graduated from a particular campus with a lot of mentoring, the philosophy, the knowledge from that campus, and now he is facing competition of the market. I understand the way you face. I am more concerned with you even today as my students. When you are facing crises, oppositions, competitions, and trying to win. I always think of you, remember that. Not that you have just passed out, you have graduated. I think about you. I keep asking your bosses,
I keep asking your company heads, how kids doing? And trust me, I can tell you, 99% company heads and your bosses have told me, the boys from Whistling Woods are brilliant. All compliment goes to you. And you must come here every year to meet each other, to greet each other, to meet your staff, to meet your teachers who have given you so much. And we are here to protect you again. You are not out of this place, but you are not out of our heart. You will always remain in my heart particularly. I don't want to see you alumni all the time. I want you to see a big star, big achiever. I want you to come back here as a big achiever. We are always there for you. We'll be there for you. Whether you are a student or alumni, you belong to Whistling Woods. And I respect that sentiment, and I'm sure you will come again and help each other, exchange your views, support each other. That is why this annual meet is there. The essence of the annual meet is that you must meet new students, you must meet your juniors, your seniors, and discuss your problems and cheers. Because this is not my birthday, it is your birthday. It's the birthday of every alumni. I wish you all the best. I wish you the best. I am there for you. Whistling Wood is there for you forever. Whenever you need, we will protect you, we will stand by you, and we will see that you go to your zenith, to your top. Thank you very much. जन्मदिन के अवसर पर और जो जिस तरह से विस्लिंग वुड्स ने 10 साल पूरे किए हैं उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अलुमनाई मीट भी है और हमने देखा पूरा सेलिब्रेशन था। कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगे? मैं अपनी यादों में एक याद शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि मैं प्रोड्यूसर को मिल सकूं या फिल्म की बातें समझ सकूं कि यहाँ इंडस्ट्री कैसे चलती है, बिजनेस कैसे होता है। मैं अपने प्रोफेशन में FTI से सीख के आ गया था, लेकिन मिलने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जब मैं ज़िंदगी में थोड़ा सा सफल हुआ, ईश्वर ने कुछ पैसा दिया मुझे, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो बच्चे टैलेंटेड हैं, स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल के साथ उनके पास कोई कनेक्शन नहीं, या तो फिल्म फैमिली के बच्चे हैं, लेकिन मैं अलग अलग स्टेट से, भारत के स्टेट से आया हूँ और मेरे पास टैलेंट है, तो मैं किसको मिलूँ? अगर मिलूँ तो मैं क्या कहूँ? ये दो बातें मुझे हमेशा तंग करती थी। और बहुत से स्ट्रगलर्स, बहुत से टैलेंट एस्पायरेंट्स मेरे ऑफिस में आते थे। तब ये मुझे याद है कि मैंने ये बात दिलीप कुमार साहब से की थी सौदागर के टाइम पर, कि सर ये बड़ी कमाल की बात है कि 100 साल का हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अरसा हो गया और किसी फिल्म मेकर ने एक अच्छा फिल्म स्कूल या फिल्म लाइब्रेरी नहीं बनाई है। तो तब दिलीप साहब ने मुझे कहा कि ये काम तुम करो, क्योंकि काम की सलाह देना बहुत आसान है, उसके बारे में सोचना भी बहुत आसान है, लेकिन खुद कर देना ही एक सही उसका अर्थ है, अगर आप सच्चा सोचते हैं तो। ये दिलीप साहब ने मुझे कहा। और फिर मैं सुनील दत्त साहब के पास गया और वो राजनीति में थे, तो मुझे चीफ मिनिस्टर के पास लेके गए और हमने उनको प्रपोजल दिया कि एक इस तरह सा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक कैंपस हो जिस कैंपस के में सब बच्चे आएँ और हम उनको जो काम है उनका फिल्म इंडस्ट्री का, वो काम सिखाएं। एक स्टूडियो भी बनाएं जिसमें वो उधर फिल्में भी बना सकते हैं, अपना काम भी दिखा सकते हैं, अपनी शो रील बना सकते हैं। और 2001 से लेकर 2017 10 साल तो इस कैंपस को हुए हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स के लिए हुए हैं 10 साल। मेरे लिए तो ये कम से कम 18 साल है, क्योंकि 10 साल से पहले मैंने 8 साल पहले मैंने काम किया, और जो काम किया वो ये आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि व्हिस्लिंग वुड्स की एजुकेशन फिलॉसफी, व्हिस्लिंग वुड्स की टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज़, टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि आज सब एलुमनाई आए हुए हैं जो कि अपने अपने मीडिया
कंपनीज में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भी लगाव जो है आज व्हिstling वुड के साथ ऐसा है, यंगस्टर को मदद करने के लिए, आपस में एक दूसरे को व्यू एक्सचेंज करने के लिए, मदद करने के लिए। सो व्हिstling वुड एक किस्म की एक परिवार बन गया है। अगर यहाँ से चला भी जाता है कि कोई बच्चा, वो हमेशा व्हिstling वुड्स का ही बच्चा कहलाएगा। और मैं उनके लिए हमेशा तैयार हूँ, मेरी टीम पूरी तैयार है उनके लिए। जब भी वो आते हैं छोटी फिल्में बनाने के लिए, या उनको कुछ स्टूडियो चाहिए होता है या कोई फैसिलिटीज़ चाहिए होती है अपना कैरियर बनने के, तो हम उनकी मदद करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा दिन है आज जो चुना है हम, इन्होंने ही, बच्चों ने ही चुना है कि 24 जनवरी को हम एक एनुअल मीट रखेंगे जहां हम मिलेंगे, अपने टीचर से मिलेंगे जिन्होंने हमें पढ़ाया, और हम अपने इंटरेक्शन दिखाएंगे कि इंडस्ट्री में हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर हम उनको सलाह देते हैं कि इंडस्ट्री के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे प्रोफेशनली जाना है। क्योंकि मैंने 45 साल 45 ईयर्स में इस इंडस्ट्री में रहा हूँ, स्ट्रगलर से लेकर एक्टर तक, एक्टर से राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कॉर्पोरेट, एजुकेशनिस्ट। तो ये लंबी यात्रा का जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उन्हें देता हूँ। तो ये एक दिन जो है बच्चों के लिए, एलुमनाइज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, व्हिstling वुड्स के लिए, हमारे लिए, सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और मुझे खुशी है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है और वो बहुत खूबसूरत तरीके से इसका जैसे उत्सव देखा वो मनाती है। और हम एक दूसरे के लिए स्टैंड बाई हैं, हमारी यूनिटी है। व्हिstling वुड हैज़ इट्स ओन यूनिटी टू स्टैंड बाई विद ईच अदर वेन एवर दे नीड। दिस इज़ द पर्पस। यहाँ से जाने के बाद कोई प्रोजेक्ट या किसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे अभी आपके एक स्टूडेंट ने लैला ओ लैला गाना गाया रेस में, तो कितना प्राउड फील करते हैं इस मोमेंट को देख के आप? मैं उतना ही प्राउड फील करता हूँ जो एक बाप अपने बच्चों को तरक्की करते हुए देखता है, क्योंकि ये सब बच्चे हमारे हैं, हमने इनके साथ रहे हैं, जुड़े हैं। हमने इन्हें कभी कॉलेज के स्टूडेंट नहीं समझा कि बिखरे हुए स्टूडेंट्स हैं, आओ फीस दो, पढ़ो और जाओ। मेरे सबके साथ पर्सनल ताल्लुक़ हैं, मेघना के साथ पर्सनल ताल्लुक़ हैं, राहुल के साथ पर्सनल ताल्लुक़ है। जब पर्सनल ताल्लुक़ होता है स्टूडेंट से, तो उसकी तरक्की में हमें कितनी खुशी होती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि एक पिता को अपने बच्चे के लिए होती है, तो चाहे वो डायरेक्टर हो, राइटर हो, सिंगर हो, कोई भी हो, वो खुशी कह लीजिए। और प्राउड ये होता है कि उन्होंने अपना नाम कमाया और कमाएंगे। और अभी तो 10 साल हुए हैं, अब ये इंस्टीट्यूट और बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है, और लोग जो हैं पहचान रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री में सब कंपनीज़ के अंदर हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आज समय तो हर चीज़ को लगता है। जितने भी डायरेक्टर्स बने हैं उनको 10-15 साल तो लगे हैं, स्टार भी बने हैं तो उनको भी 5-7 साल लगते हैं। तो लेकिन उसका रिसेप्शन जो है इंडस्ट्री में वो बहुत अच्छा है, इसका मुझे बहुत गर्व है। आपके नज़रिए से कोई बदलाव आप mention करें? जब मैं छोटा था तो हर शहर में आपने देखा होगा लोग साइकिल चलाते थे, फिर लैम्बरेटा आया, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर कार आई, फिर मारुति कार आई, फिर बड़ी कारें आ गई, फिर अब बड़ी मॉडर्न स्पोर्ट्स कार आने शुरू हुई। पहले एक टेलीफोन जो था वो एक लैंडलाइन का था, किसी किसी के घर में होता था। आज हर मजदूर के हाथ में एक मोबाइल है। तो आप देखिए कि टेक्नोलॉजी ने कितनी और साइंस ने कितनी तरक्की की है। जितनी साइंस ने तरक्की की है उतनी सिनेमा ने भी की है। सिनेमा के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। अब सब बच्चों को जो पूरे देश विदेशों के सब नॉलेज है, उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके पॉलिटिक्स के बारे में। तो आज विषय भी जो हैं वो अलग अलग तरीके से बच्चे जो हैं बना रहे हैं। कंटेंट भी जो है, अगर वो पिंक बनाते हैं या मिर्जा बनाते हैं तो साथ में सुल्तान भी बनाते हैं, साथ में दंगल भी बनाते हैं। तो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, वैरायटी ऑफ टैलेंट, वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी है हमारे पास जो हमारे टाइम पे नहीं थी। हम उस टाइम के जब साइकिल, लैम्बरेटा और मोटरसाइकिल भी थी तो बहुत कुछ था हमारे लिए। तो उतना बदलाव तो आएगा ही और आना भी चाहिए। आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट जो हैं मेरे लिए हमेशा चैलेंज रहते हैं। अभी 10 साल से तो यही मेरा प्रोजेक्ट था कि व्हिstling वुड्स में किस तरह से ये पूरा एक संपूर्ण तरीके से एक विश्वविद्यालय बन जाए, एक यूनिवर्सिटी बन जाए, और उसकी एक फ़िलासफ़ी हो कि खाली बच्चों के वेलफेयर के लिए कैसे सोचा जाए, पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा चाहिए, लेकिन उतना ही चाहिए जितना कि बच्चों को हम पढ़ा सकें, बच्चों को हम आगे ले जा सकें। अब मेरे लिए प्रोजेक्ट जो है, मैं बेसिकली फिल्म मेकर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ। वो इच्छा तो हमेशा रहती है और हमेशा तलाश करता रहता हूँ कि मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं तो कम से कम एक ऐसी फिल्म बनाऊँ जो सब फिल्मों से बेहतर हो। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा चैलेंज है। उम्र बढ़ती जा रही है, चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं और दिशाएं बदलती जा रही हैं, और वो चैलेंज लेके मैं एक सब्जेक्ट लिख रहा हूँ
और बहुत जल्दी ही मैं आपके सामने पेश करूँगा, आपको अनाउंस करूँगा, आप सबको बताऊँगा कि मैं क्या बना रहा हूँ।